Hello, good morning. Today we present here with a new topic, diseases of respiratory system. So in this video you learn about common diseases or complications which develops or occurs in respiratory system. Respiratory system is one of the more important system in our body. Without proper functioning of this system, we never think about survival on this earth. So first we see the different parts of the respiratory system or anatomy of respiratory system. It is divided into two parts, conducting part and respiratory part. Conducting part or upper respiratory tract, respiratory tract part or lower respiratory tract. So upper respiratory tract or conducting parts contains nose, nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. Conducting part contains nose, nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. Respiratory part contains respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac and alveoli. These two parts unite and form a complete respiratory system, in which inspiration and expiration, also gaseous exchange takes place and complete the process of respiration. Respiration means inspiration and expiration. In this diagram you see outline of respiratory system above downwards. So first disease in respiratory system is nasal polyp और नासिका आबुर्द. पोलिप शब्द का प्रयोग ओवर ग्रोथ के लिए होता है. वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो. अगर नाक में होता है तो नेजल पोलिप, ईयर कान में होता है तो ओरल पोलिप, यूट्रस में होगा तो यूटराइन पोलिप, रेक्टम में हुआ तो रेक्टल पोलिप, और इट मे बी develops in other parts of the body or in viscera. So nasal polyp is one of the main cause of respiratory difficulty. Polyp is soft, painless, non-cancerous growth on the lining of nasal passage or sinuses. They hang down like teardrops or grapes. They result from chronic inflammation and are associated with asthma, recurring infection, allergies, drug sensitivity और certain immune disorders. कोई भी पेशेंट जब आता है और वो कहता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जनरल प्रैक्टिस में ये समझ लेते हैं कि इसको अस्थमा हो गया है, दम्मा हो गया है, और विदाउट एनी लोकल एग्जामिनेशन दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन. सो इफ यू एग्जामिन 100 केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट और जिसे लगे कि इसे अस्थमा है या दम्मा है,
उस केस में अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली नेजल कैविटी का अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें 60 to 70% ये केस मिलेगा नेजल ओवर ग्रोथ। नेजल ओवर ग्रोथ और नेजल पोलिप की समस्या लगभग 70 to 80% में पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। और मेन कॉज इसका है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, स्पेशली जो हम घरों में मॉर्टन या मुर्गा छाप जो मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं, तो जिसके स्मेल से मच्छर मर जाता है तो क्या उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रयोग नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरों में जो हम लक्ष्मण रेखा यूज करते हैं चींटियों वगैरह को मारने के लिए या वो पार न करे, क्या उसका स्मेल हमारे नाक में नहीं आता है। सो दीज आर द लॉट ऑफ कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पोलिप इन सर्जरी इज रिमूवल और एक्सीजन, बट इन होम्योपैथी it takes 3 months to 6 months, but it become normal after continue taking medicine. सर्जरी में नेजल पोलिप का एक बार अगर ऑपरेशन हुआ तो 2 बार 3 बार भी हो सकता है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पोलिप, इंटीरियर पोलिप, पोस्टीरियर पोलिप, राइट और लेफ्ट। It depends upon different age groups. Next is epistaxis या नक्सीर, जिसे बोलते नाक से खून निकलना। Epistaxis is defined as acute hemorrhage from the nostril, nasal cavity or nasopharynx. It is a frequent emergency department complaint and often causes significant anxiety in patient and practitioner. So नाक से खून निकलना या एपिस्टैक्सिस के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो है इंजुरी, एक्सटर्नल चोट लग जाना। गर्मी के दिनों में नेजल म्यूकोसा ड्राई हो जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है। रिलेटेड टू ब्लड डिसऑर्डर और विटामिन के डेफिशिएंसी ऑल्सो ए कॉज। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इंट्राक्रैनियल हेमरेज। सो लॉट ऑफ कॉजेज present for epistaxis. So management of epistaxis is depends upon cause. नेजल सेप्टम, दो नासिकाओं या नेजल कैविटी के बीच में एक मेम्ब्रेनस वाल होता है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो नेजल सेप्टम अपने नॉर्मल पोजीशन से डेविएट अगर हो जाता है राइट साइड या लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो डेविएटेड नेजल सेप्टम अकर्स व्हेन योर नेजल सेप्टम इज significantly displaced to one side, making one nasal air passage smaller than the other. A deviated nasal septum occurs when the thin wall or nasal septum between your nasal passage is displaced to one side. एक साइड से दूसरे साइड की तरफ अगर उसमें घुमाव हो गया, कर्व हो गया, तो एक नोस्ट्रिल का साइज पैसेज ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे का कम हो जाएगा। सो कॉज ऑफ नेजल सेप्टम, इट मे बी ड्यू टू नेजल पोलिप और कंजेनाइटल। सो ट्रीटमेंट इज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी और ट्रीटमेंट ऑफ द cause. If cause is nasal polyp, so remove the nasal polyp.
Pneumonia. Pneumonia means air inside lungs. Pneumon means lungs. Pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. The air sacs may fill with fluid or pus, causing cough with phlegm or pus, fever, chills and difficulty in breathing. A variety of organisms including bacteria, virus, fungi and atmospheric changes can cause न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया जनरली बच्चों में होती है, लेकिन एडल्ट एक्सेप्शन नहीं है, उनमें भी हो सकती है। ये राइट लंग्स में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है और राइट या लेफ्ट लंग के लोब के अनुसार भी हो सकता है। सो न्यूमोनिया इज acute emergency. It requires acute treatment. In this slide we see condition and auscultatory finding। जो स्टेथोस्कोप से जो हम अस्कल्टेशन करते हैं वो किन कंडीशन, किस बीमारी में कैसी सुनाई देती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, डिफरेंशियल एयर एंट्री क्रीपिटेशन, लोकेलाइज्ड व्हीजिंग ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, डिक्रीज और नो एयर एंट्री इन कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया विथ कंसोलिडेशन। इन ब्रोंकाइटिस फाइन इंस्पायरेटरी क्रैक्स and or high pitched expiratory wheeze. So this is also differs preschool viral wheeze, chronic lung disease of prematurity, croup, tonsillitis, otitis media, protracted bacterial bronchitis. Difference between viral bronchitis and bacterial pneumonia. In viral bronchitis, dry cough, first no mucus, but later it bring up yellow or green mucus. In pneumonia, cough can be painful, very yellow or green mucus. It may also be tinged with blood. Tinged means associated. In bronchitis, if you have a fever, it will be mild, and in pneumonia, fever generally high. So, according to shortness of breath, tenderness, wheezing, stuffy nose, normal heart rate, and fatigue are the point for difference between viral bronchitis and bacterial pneumonia. Bronchitis and asthma. Asthma refers to recurrent bouts of wheezing and chest tightness due to airway narrowing. Bronchitis is an inflammation of the bronchial tube lining. In asthma chronic condition, bronchitis can be chronic or acute. In asthma, common symptoms include chest tightness, shortness of breath and wheeze. In bronchitis, hacking cough with or without phlegm are symptoms of chronic bronchitis. Persistent cough and wheezing are symptoms of acute bronchitis. So this is difference between bronchitis and asthma.
व्हाट इज आस्थमा? आस्थमा क्या है? आस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। आस्थमा होने पर रेस्पिरेटरी पैसेज में सूजन आ जाती है, जिस कारण रेस्पिरेटरी पैसेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या सिकुड़ जाता है। श्वसन नली में सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज़ आना, सीने में जकड़न, खांसी आदि समस्याएं होने लगती हैं। लक्षणों के आधार पर आस्थमा दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, आस्थमा इज ऑफ टू टाइप्स, आउटर एंड इंटरनल। एक्सटर्नल आस्थमा is caused by external allergens as like pollen grains, animals, dust, etc. Internal asthma is caused by certain chemical substance or factors which enters inside body as like smokes of bidi, cigarettes, gaja, paint, wafers, etc. Symptoms of asthma: sputum associated with cough or dry cough, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना, कंस्ट्रिक्शन, फीलिंग ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन इंस्पायरेशन, अनइजीनेस एंड घरघराहट और व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इन नाइट और इन मॉर्निंग डिफ़िकल्ट कंडीशन और डिस्टर्ब्ड और सीरियस कंडीशन, ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर होना, कंडीशन वर्स्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हेवी ब्रीदिंग causes letharginess. In sometimes vomiting tendency may be present. Types of asthma: allergic asthma, non-allergic asthma, mixed asthma, exercise induced asthma, cough variant asthma, occupational asthma, nocturnal asthma, mimic asthma, child onset asthma and adult onset asthma. So these are the different types of asthma. Examination for treatment of asthma. आमतौर पर और जनरली स्पेशलिस्ट डॉक्टर आस्थमा का ट्रीटमेंट लक्षणों के आधार पर करते हैं, लेकिन कभी कभी सम सिम्टम्स डाइवर्ट हिम विथ मिक्स्ड सिम्टम्स, सो ही एडवाइज or required some investigation that confirm the asthma. In investigation, a spirometry, peak flow, X-ray, methacholine challenge, nitric oxide test, imaging test, allergy test. आस्थमा का उपचार, मैनेजमेंट ऑफ आस्थमा। आस्थमा का उपचार समय रहते अगर विशेषज्ञ से
इसका इलाज करा लिया जाए तो ये अच्छा होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इग्नोर करने के बाद जब ये पुराना हो जाता है, ज़्यादा दिन का हो जाता है, तब बहुत ही कठिनाई होती है। जनरली अस्थमा के उपचार में, मैनेजमेंट में, नाक से दी जाने वाली दवा इनहेल्ड स्टेरॉयड और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं कारगर मानी जाती है। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स रेस्पिरेटरी पैसेज के द्वारा देने के बाद तत्काल प्रभाव से आराम मिलता है, अस्थमा में राहत दिलाते हैं। इसके अलावा नेबुलाइजर का प्रयोग भी किया जाता है। डॉक्टर के बिना सलाह के किसी भी दवाओं का अधिक दिनों तक सेवन लाभ के बदले हानिकारक हो सकता है और इसके बहुत ही दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा से बचाव कैसे कर सकते हैं? अस्थमा हो जाने पर डॉक्टर के सलाह के अनुसार मेडिसिन लेनी चाहिए। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा नम वातावरण से बचना चाहिए। धूल मिट्टी और प्रदूषण से बचना चाहिए। घर के बाहर जब हम निकले तो मास्क का प्रयोग करें, जिसे हम प्रदूषण और डस्ट से बच सकते हैं। सर्दी के मौसम में कुहासे या धुंध में जाने से बचें। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से दूर रहें। योग करें, लेकिन प्रशिक्षित योग निर्देशक के सलाह के अनुसार करें। कहीं भी घर से बाहर जाए तो अस्थमा की दवाएं पास में रखें और डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। खुद बचाव करें और रात में गुनगुने पानी का सेवन करें। हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचें। आहार में पत्तेदार सब्जियां, गाजर का रस, विटामिन ए, सी और ई युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इस प्रकार से अस्थमा से बचाव संभव है। न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस एक बीमारी है जो युवाओं में पाया जाता है और ऐसे इलाकों में, क्षेत्र में जहाँ डस्ट और बलुई भूमि होती है, जहाँ सैंडी एरिया है, स्पेशली जो नदी के इलाके होते हैं, या स्पेशली राजस्थान या गुजरात के मरुस्थलीय भाग, इन क्षेत्रों में न्यूमोकोनियोसिस इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज caused by breathing in certain kinds of dust particles that damage your lungs. Because you are likely to encounter this dust only in the workplace. Pneumoconiosis is called an occupational lung disease. ऑक्यूपेशनल, व्यवसाय के कारण जो ईंट भट्ठों में काम करते हैं, कोयला के खदानों में काम करते हैं, या टाइल्स के काम में करते हैं, पत्थर के खदानों में काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो पत्थर से मूर्तियाँ बनाते हैं, ये सब इसके शिकार होते हैं, इसके ग्रसित होते हैं। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस is an occupational lung disease caused by the inhalation of respirable dust containing crystalline silica, जो हमारे सांस के द्वारा, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हमारे लंग्स में चला जाता है और वह एल्वियोलाई को डैमेज करता है,
There are two forms of the disease, nodular silicosis and silicoproteinosis, that is acute silicosis. आप डायग्राम में देख रहे हैं सिलिकोसिस बीमारी से मृत व्यक्ति के लंग्स जो है फेफड़ा, उसका ये डायग्राम है कि ब्लैक स्पॉट में आप देख रहे हैं इसके अंदर सिलिका के पार्टिकल डस्ट जमा होने के कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर हुआ और इस इंसान की धीरे धीरे तबीयत खराब हुई और मर गया। इससे बचाव के लिए अपने कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस जो है वहाँ पर हम मास्क का प्रयोग करें और उसके पूरे नियमों का पालन करें। जैसे कोई पत्थर का काम करना है, पहले उस पर हम पानी डालें और तब काम करें, तो उससे क्या है, डस्ट कम उड़ता है और डस्ट का इनहेलेशन कम होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज primarily affecting lung parenchyma, is most often caused by Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis के द्वारा ये रोग होता है। It may spread to any part of the body including meninges, kidney, bones and lymph nodes. ये शरीर के किसी भागों में हो सकता है। In homeopathy, never prescribed tuberculinum, and in history of tuberculosis never prescribed silicea in any form or stage, because silicea has ability to expel the foreign particles. तो शरीर के अंदर पल्मोनरी, अगर जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, टीबी की दवा खाई, तो टीबी का जो हीलिंग होता है, तो हीलिंग के बाद में नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक्सटर्नल सरफेस पर आप देखते हैं एब्सिस में किलोइड स्कार का जो फॉर्मेशन होता है, तो उसी प्रकार इनसाइड लंग्स होता है। तो जो अंदर में नोड बन गया वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल हो गई। तो एक्टिव केस अगर ट्यूबरकुलोसिस का है, उसमें ट्यूबरकुलिनम, और ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो उसमें सिलिसिया, ये दोनों दवाओं को प्रयोग वर्जित है, इसे प्रिस्क्राइब न करें। इसीलिए होम्योपैथी में हम केस टेकिंग करते हैं। रिच प्रोटीन डाइट इज इंक्लूडेड इन डाइट मैनेजमेंट। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के डाइट में, भोजन में, आहार में उच्च क्वालिटी रिच प्रोटीन डाइट इंक्लूड करें, जिससे रिकवरी में आसानी होती है, जल्दी होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स, ब्रायोनिया रस्टक्स, जस्टिसिया, यारवा संटा, जस्टिसिया एंड यारवा संटा यूज्ड स्पेशली इन केस ऑफ न्यूमोनिया, लैकेसिस, फॉस्फोरस, थूजा, ट्यूक्रियम मदर टिंचर एंड पोटेंसी यूज्ड इन नेजल पोलिप, बट ट्यूक्रियम इन पोटेंसी यूज्ड इन all types of polyp, may be nasal, oral, rectal or uterine polyp, may be other medicine required or indicated for polyp. Sanguinaria nitrate, Merxol, Graphitis, sulfur, Drosera rotunda, especially in whooping cough, Tuberculinum, Blata orientalis in advanced case of asthma. It gives relief. Thank you for watching. You like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.